Now we are going to teach the subject human physiology. Chapter is endocrine system for the student of BHMS first. First of all, in this subject, we have to know about the introduction of endocrine system. Let us start to teach the shape. The nervous system controls homeostasis through electrical impulses delivered over neurons. The nervous system controls homeostasis through electrical impulses delivered over neurons. The body's other control system, the endocrine system, affects bodily activities of releasing chemical messengers, called hormones into the bloodstream. Whereas the nervous system causes muscles to contract and glands to secrete. The endocrine system brings about changes in the metabolic activities of body tissues. The release of nerve impulses is much more than rapid than that of hormones. The release of nerve impulses is much more rapid. क्या है कि जब नर्व इम्पल्स रिलीज होता है वो बड़ी तीव्र गति में होता है देन दैट ऑफ हार्मोन्स. ऑल्सो द इफेक्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑल्सो द इफेक्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम stimulation are generally brief compared to the effects of endocrine stimulation. Obviously, the body could not function. If the two great control systems were to pull in opposite direction. The nervous and endocrine system coordinate their activities like an interlocking super system. The nervous and endocrine system coordinate their activities. Means जो एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे के कार्य में सहायक हो, like an interlocking system. Certain part of the nervous system, certain part of
nervous system, stimulate or inhibit the release of hormones. Stimulate or inhibit the release of hormones. And hormones in turn are quite capable of stimulating or inhibiting the flow of nerve impulses. Although the effects of hormones are many and varied, their action can be categorized into four broad areas. इसके 4 क्षेत्र हैं, और वो क्षेत्र क्या है, कौन कौन सा है? 4 ब्रॉड एरिया जो है इसका, वो क्या क्या है? पहला है द हेल्प टू कंट्रोल द इंटरनल एनवायरमेंट बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम। ये जो 4 क्षेत्र है, वो क्षेत्र में पहला क्षेत्र है जो इंटरनल एनवायरमेंट को कंट्रोल करने में सहायक होता है बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम। इसके रासायनिक अवयवों का और इसके आयतन का। दूसरा है द रिस्पॉन्ड टू मार्क चेंजेस इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। They respond to marked changes in environmental condition to help the body cope with emergency demands such as infection, trauma, emotional stress, dehydration, starvation, hemorrhage and temperature extremes and temperature extremes। तो दूसरा कार्य क्या हुआ कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशन में कोई चेंजिंग बदलाव होता है, इमरजेंसी डिमांड होता है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो, कोई ट्रॉमा हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, खुशी हो, गम हो, सदमा हो, अवसाद हो, डिहाइड्रेशन हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लॉस ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, स्टार्वेशन रिलेटेड टू हंगर, हेमरेज, ब्लीडिंग एंड टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। तो ये था दूसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है they assume a role in the smooth sequential integration of growth and development. They assume a role in the smooth sequential integration of growth and development. चौथा इसका एरिया है, चौथा क्षेत्र है, they contribute to the basic process of reproduction, including gamete production, fertilization, nourishment of the embryo and fetus, delivery and nourishment of the newborn। चौथा क्षेत्र इसका देखने को क्या मिला, हमें समझने को क्या मिला? बेसिक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन का जो बेसिक प्रोसेस है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इंक्लूडिंग गेमेट प्रोडक्शन। गेमेट का जो उत्पादन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रो एंड फीटस, माता के गर्भ में जो एम्ब्रो है, भ्रूण है, फीटस है, उसको
पोषक तत्व प्रदान करना, उसका पोषण करना, एंड नरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न। और माता के गर्भ से जब बच्चा बाहर आया है तो उसके भी पोषण का कार्य एंडोक्राइन सिस्टम के ये चौथा क्षेत्र पर आधारित होता है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि माता के गर्भ से जब बच्चा बाहर आया है, when a mother has delivered a baby, the baby have need of food। उस बच्चे को भोजन की जरूरत है। इस सिस्टम के माध्यम से माता के स्तन में दूध संग्रह होकर रहता है बाय डिंट ऑफ सिस्टम ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, और वो बच्चा उस दूध को ग्रहण करता है और उससे उस बच्चे का पोषण होता है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, और इसके 4 क्षेत्र हैं इस पर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कशन ऑन द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो हमारा चर्चा होने जा रहा है वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स पर है। उसको यूं समझा जाए, इंडोक्राइन ग्लैंड्स मेकअप द इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन ग्लैंड्स मेकअप द इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? इंडोक्राइन सिस्टम को, अंतःस्रावी प्रणाली को मेकअप करता है। द बॉडी कंटेन्स 2 काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स। ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के ग्लैंड्स हैं? 2। पहला कौन सा है? एक्सोक्राइन, और दूसरा कौन सा है? इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन। बाह्य ग्रंथि, एक्सोक्राइन क्या हुआ? बाह्य ग्रंथि, और इंडोक्राइन क्या हुआ? अंतः ग्रंथि। इंडोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रेट देयर प्रोडक्ट्स। इंडोक्राइन ग्लैंड उत्पादित करता है अपने उत्पाद को into a free surface or into ducts, free surface or into ducts. The ducts carry the secretion into body activities. वो डक्ट कैरी करके ले जाता है, ढो के ले जाता है into body activities, बॉडी का जो गतिविधि है उस पर, into the lumens of the various organs, into the lumens of the various organs or to the body surface. Exocrine glands include sweet. अंतःस्रावी ग्लैंड क्या है? इंक्लूड स्वीट्स, सीवासियस, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन कौन है एक्सोक्राइन में? सीवासियस ग्लैंड है, म्यूकस है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। इंडोक्राइन, इंडो मीन्स विदिन, अंतः। By contrast, secrete their products. By contrast, secrete their products like hormones into the extracellular space, into the extracellular space around the secretory cells, around the secretory cells, rather than into ducts. The secretion then passes into capillaries to be transported in the blood. इसके बाद वो ब्लड में जाता है। The endocrine glands of the body include the pituitary. endocrine gland क्या है? कौन सा है? Pituitary. Hypophysis,
थायराइड, ये सब इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एडिनल्स, सुपर एडिनल्स, पेनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, पीनियल, एपिफाइसिस, सेरेब्री, थाइमस, किडनीज, एस्टोमेक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड प्लासेंटा। ये सब क्या है? जो इंडोक्राइन सिक्रेशन के लिए जो ये सब ऑर्गेन्स है, जो अंतःस्रावी सिक्रेशन देता है। As you will see, some of these glands are mixed. That is, both endocrine and exocrine. कुछ ऐसा भी ग्लैंड्स है जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। द पेनक्रियाज इज एन एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल क्या है? पेनक्रियाज है। द लोकेशन ऑफ मेनी ऑर्गन्स इज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। तो अभी हम लोगों ने जाना कि एंडोक्राइन सिस्टम में दो ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन होता है, और एक पेनक्रियाज ऐसा है जो दोनों सिस्टम उससे संचालित होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने इंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन्स आता है जो अंतःस्रावी सिक्रेशन करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सा है जो बाह्य स्रावित करता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी जाना। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एडिनल, पेनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, पीनियल, थाइमस, किडनी, एस्टोमेक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड प्लासेंटा। तो ये सब ऑर्गन्स इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल अपने वर्क को संपादित करता है। टुडेज stay here for this chapter. Next class will be on chemistry of hormones. Next I will try to teach about the chemistry of hormones in the next classes. Thanks. Okay.